Hello students. एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स मेटलर्जी का चैप्टर शुरू हुआ है कल से। तो कल हमने अपरेंस ऑफ मेटल्स और टाइप्स ऑफ ओर्स इसके बारे में बताया था, कुछ फर्नेंसेस के बारे में बताया था जिसमें कि ये सारा प्रोसेस किया जाता है। और आज हम प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी इसके बारे में तुम लोगों को आज के क्लास में बताएंगे। वही प्रोसेस है, 2-3 मिनट वेट करना होगा, उसके बाद हम बताते हैं कि मेटलर्जी, व्हाट इज मेटलर्जी। मेटल से ओर से जो हमें नेचर में मिलता है उससे प्योर मेटल हासिल करने का पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी में बहुत से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले उसकी मेटल्स के जो ओर मिलते हैं उनको पीसा जाता है छोटे, उसके बाद उसका कंसंट्रेशन होता है, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब प्रोसेस होते हुए लास्ट में प्यूरिफिकेशन होता है और हमें प्योर मेटल हासिल हो जाती है। तो आज का चैप्टर है प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। आज का जो टॉपिक है चैप्टर तो वही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। बहुत अच्छी बात है कि आज नेट थोड़ा बेहतर चल रहा है और तुम्हारा टाइम शुरू का जो बर्बाद होता था वो उतना बर्बाद नहीं होगा। हेलो एवरीवन। तो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स का अगला टॉपिक या मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है मेटलर्जी। जैसा कि आपने बताया कि नेचर में मिलने वाली ओर से प्योर मेटल प्राप्त करने तक का पूरा प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी। द होल प्रोसेस of obtaining pure metal from one of its ore is known as metallurgy. The whole process of obtaining a pure metal from one of its ore is known as metallurgy. In order to extract metals from ores, several physical and chemical methods are used. The met 2 minutes. The methods used in a particular case depend upon the nature of the ore, the properties of the metal and the local conditions. Thus, it is not possible to have universal method for the extraction of all the metals from their ores. However, metallurgy of metal involves three main operations. First, concentration of the ore. Second, isolation of the metal in crude state from the concentrated ores. And third process, purification or refining of the crude metals. The first step of metallurgy क्या है? Concentration or dressing of the ore. The ore usually are obtained after mining in the form of big lumps. These are broken into small pieces with the help of crushers and grinders. This process is called crushing. These pieces are then converted into a fine powder with the help of either a ball mill or a stamp mill. This process is termed pulverization. Pulverization, not pulverization. Ores usually contain soil, sand, stones, and other useless silicates. These undesired impurities present in ore are called gangue or matrix. The removal of these impurities from the ore is known as concentration or dressing or benefaction. It can be done in a number of ways depending upon the nature of impurities. First process for concentration is gravity separation.
This separation is based on the difference in the specific gravity of the gangue particles and the ore particles. The powdered ore is agitated with water or washed with running stream of water. The heavy ore particles settle down while the lighter particles of sand, clay, etc. are washed away. For this, either will flay table or hydraulic classifier is used. Will flay table is a wooden table having a standing floor in which long wooden strips called रिफ्लेस आर फिक्स्ड. इस तरह से यहाँ से हम ये पूरा होता है सिस्टम. वाटर यहाँ से तेज धार के साथ फ्लो होता है और यहाँ से हम जो क्रश्ड ओर है जिसको हमने पाउडर ओर कर दिया है उसको डालते हैं वाटर के फ्लो में. बीच बीच में रेफिल्स है. और पार्टिकल्स यहाँ पे रुक जाते हैं और जो गैंग है वो वाटर की तेज धार के साथ बाहर निकल जाता है. तो इस तरह से इसका कंसंट्रेशन बाई वाइल फ्ले टेबल से करते हैं. जनरली ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट ओर आर कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड. और एक ये दूसरा मेथड है, इसको हमें थोड़ा छोटा डायग्राम दिखाना पड़ेगा तब दिखेगा पूरा. ये है पाउडर ओर, ऊपर से डालते हैं. नीचे क्या है, वाटर का फ्लो यहाँ से तेजी से हो रहा है तो इसमें वाटर में पूरा पहले घुलता है और मेटल्स, हैवी मेटल्स नीचे आ जाती है. इम्प्योरिटीज वाटर के साथ घुल करके एज ए गैंग बाहर निकल जाती है और यहाँ पे हमको कंसंट्रेटेड और हम यहाँ से निकाल लेते हैं. ये कहलाता है ग्रेविटी प्रोसेस. For example, tin ore and iron ore are concentrated by gravity method. The second method, electromagnetic method. Now, electromagnetic method, when one component, either the ore or impurity is magnetic in nature, this method can be used for separation. A magnetic separator consisting of a belt moving on two rollers used, one of which is a strong magnet. The powder ore is dropped on the belt from one end, which is non-magnetic, and at the other end that is magnetic. The magnetic particles are attracted and fall nearer the roll, while non-magnetic particles fall away from the roller. Ferromagnetic ores are concentrated by this method. For example, wolframine FeWO4, a magnetic ore, is separated from the non-magnetic ore कैसीटेराइट SnO2 by this method. यहाँ पे देखो ये पाउडर ओर है, ये तुम्हारा ये मूविंग बेल्ट है, इसके ऊपर से ये दोनों रोल घूमता रहता है, इसके ऊपर से और पार्टिकल डाले जाते हैं. तो जो मैग्नेटिक नेचर की मेटल होती है वो इधर मैग्नेट की तरफ आ जाती है और गैंग इधर बाहर निकल जाता है, वो मैग्नेट की तरफ नहीं जाती. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. इम्पॉर्टेंट इसलिए कि एग्जामिनेशन में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. दिस मेथड इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर. दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. दिस मेथड इज यूज for the concentration of sulfide ore. The method is used on the preferential wetting properties with the floating agent and water. The powdered ore is added to water containing pine oil, that is frothing agent, and sodium ethyl xanthate. दोनों चीज ध्यान रखना है. A powdered ore is added to water containing pine oil and sodium ethyl xanthate, that is collecting agent. Cresol and aniline are also added. They act as froth stabilizer. A vigorous stream of air is now passed through which thoroughly agitate the mixture or dispose the oil into colloid-sized particles. As a result of this, the sulfide particles of the ore stick to the oil droplets and rise to the surface in the form of froth supported by air bubble.
Water, wets and gangue particles which sink to the bottom. With this method, it is possible to concentrate the dense ores such as galena and zinc blende. पूरा प्रोसेस इस तरह से होता है ये। इसमें ये दो टैंक है इस तरह का, इधर की तरफ कंसंट्रेटेड ओर आती है। इसमें क्या होता है, पहले हम यहाँ से देखो ये दिखाई दे रहा है, वाटर की सप्लाई इधर से होती है, इधर ओर प्लस वाटर, पाइन ऑयल, सोडियम जेंथेट, ये सारी चीज़ें जो भी बताया मिला करके इधर रखते हैं। अब इधर से वाटर सप्लाई हो रही है, इधर से एयर आ रहा है, प्रोसेस किया जाता है जब, तो कंसंट्रेटेड ओर इधर से फ्लो करके आ जाती है। जो ओर होती है एक तरह से फेन जिसको कहते हैं, फेन बना देती है इन सब के साथ, और बह करके इधर आ जाती है। और दूसरे साइड में क्या है, ये गैंग इस साइड में नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो जो ओर में जो मेटल होती है वो जो ये चीज़ें मिलाई गई, ओर, वाटर, पाइन ऑयल, सोडियम एथिल जेंटेट, इनके साथ घुल करके फेन जैसा बना लेती है और इस साइड आकर के कंसंट्रेट हो जाती है, जबकि गैंग या इम्प्योरिटीज जो है वो फेन नहीं बनाती बल्कि वो वाटर में घुल करके नीचे बैठ जाती है। This is the fourth flotation process. Now, fourth process is leaching. It is chemical separation. It involves the treatment of ore with a suitable reagent as to make it soluble while impurities remain insoluble. The insoluble impurities are separated by filtration. The impurities in this case include not only gangue but also chemical entities which are not solubilized during leaching operation. The following example illustrates the procedure. Leaching of alumina from bauxite. Bauxite contains ferric oxide, titanium oxide, and silica as impurities. When the powdered ore is digested with an aqueous solution of sodium hydroxide at about 200 degrees centigrade under pressure 35 to 36 bar, the alumina dissolves forming sodium aluminate while ferric oxide Fe2O3 and titanium oxide remain as insoluble parts. Silica also dissolves as sodium silicate. रिएक्शन इस तरह से होता है, बॉक्साइड है ये Al2O3 2H2O, NaOH और H2H से इसका रिएक्शन होता है तो सोडियम एल्यूमिनेट सोल्यूबल बन जाता है और बाकी जो तुम्हारी इम्प्योरिटीज है वो अलग हो जाती है और जो NaOH से रिएक्शन करके सोडियम सिलिकेट और H2O यानी ये सॉल्यूशन मिलता है। द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट इज फिल्टर्ड, ये सॉल्युबल सॉल्यूशन होता है और ये इनसॉल्युबल होता है। तो सॉल्यूशन हम फिल्टर करके निकाल लेते हैं जिसमें एल्यूमिनियम होता है और ये बाकी चीज़ें अलग हो जाती हैं। नाउ सोडियम एल्यूमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया जाता है, फ्लो किया जाता है वहाँ, तो एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाता है ये सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिना H2O यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. The sodium silicate remains in the solution and hydrated alumina is filtered. ये क्या है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना को हम फिल्टर कर लेते हैं और जो सॉलिड सोडियम सिलिकेट से वो कहाँ रह जाता है, सॉल्यूशन में. नाउ दिस जो एल्यूमिना हमें मिल रहा है हाइड्रेटेड एल्यूमिना, इसको ड्राई करते हैं, हीट ड्राइड एंड हीटेड टू अबाउट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टू गेट प्योर एल्यूमिना. बॉक्साइट से एल्यूमिना हासिल करने तक का ये प्रोसेस होता है. हीट करेंगे तो Al2O3 एल्यूमिना हमें मिलेगा और वाटर अलग हो जाएगा. द एबव प्रोसेस इज नोन एज बेयर प्रोसेस. ये आगे जब हम मेटलर्जी बनाएंगे एल्युमिनियम की तो ये ये जो मेथड है ये डिटेल में तुम्हारे सामने आएगा. नाउ लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. Gold and silver are extracted from their native ores or silver from argentite ore Ag2S by leaching. This is also known as McArthur Forest cyanide process.
In this process, the finely powdered argentite ore or the native silver particles or the native gold particles are treated with dilute solution of sodium or potassium cyanide while a current of air is continuously circulated. As a result, silver and gold dissolve by forming respective complex cyanides. The impurities remain unaffected, these are filtered off. रिएक्शन इस तरह से होता है, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि सॉल्युबल होता है, NaOH अलग हो जाएगा। अब और अगर जो है एज ए सल्फाइड सिल्वर सल्फाइड प्रेजेंट है और में, तो सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करके ये बनाता है वही प्रोडक्ट सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट plus sodium sulfide. Now Na2S is largely oxidized to sodium sulfate. अब यहाँ जो ये प्रोडक्ट बन रहा है Na2S, ये H2O और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट NaOH और ये सल्फर भी अलग हो जाती है। इसी तरह गोल्ड को जब हम सोडियम साइनाइड के साथ गोल्ड के ओर को, या ज़्यादातर ये प्योर ही मिलता है, इसको रिएक्शन कराते हैं तो बनता है सोडियम डाइसाइनोऑरेट, सॉल्युबल होता है ये, NaOH मिलता है। नाउ Ag और Au is recovered from the solution by the addition of electropositive metal like zinc. अब जिंक से इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट सॉल्युबल हो जाता है सॉल्यूशन में, और गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड बारी बारी से अलग हो जाता है। पहले हम इसके सॉल्यूशन को जिंक से रिएक्शन करा के सिल्वर अलग कर लेते हैं, और अगर गोल्ड का हमें प्योर करना है तो इस जो हमें ये मिला है सोडियम डाइसाइनोऑरेट, इसको हम जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट सॉल्युबल अलग हो जाता है और गोल्ड अलग हो जाता है। Extraction of gold by cyanide process involves both oxidation and reduction. Formation of cyanide complex involves oxidation of gold, while its recovery by addition of zinc involves reduction of gold. तो ये था कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, और किस तरह से जो नेटिव ओर मेटल्स हमें मिलते हैं उन्हें किस तरह से हम अलग करते हैं जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती है उससे। Now extraction or isolation of crude metal, अब इतना हमने कंसंट्रेशन कर लिया, उसके बाद उस जो कंसंट्रेटेड ओर हमें मिली उससे हम किस तरह से ओर यानी क्रूड मेटल्स प्राप्त करेंगे। क्रूड मेटल्स मीन्स वो पूरी तरह से प्योर नहीं होगी, सिर्फ हमें जो ओर से बाकी चीज़ें जो होंगी उससे हम अलग कर लेंगे। Now metals are usually extracted by reduction. Thus the concentrated ore is converted into a form which is suitable for reduction. Oxides are easier to reduce. Therefore, the extraction of metals involves the following two major steps. First, conversion of the ore into metallic oxide. जो हमें concentrated ore मिला उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं मेटालिक ऑक्साइड में, देन रिडक्शन ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड टू द फ्री मेटल। तो दो प्रोसेस होते हैं एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन ऑफ क्रूड मेटल्स के। तो पहले हम आते हैं ऑक्सीडेशन यानी कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटालिक ऑक्साइड, दैट इज ऑक्सीडेशन। The ore of the metal are usually in the form of hydrated oxide, carbonate, sulfide, etc. Depending upon the nature of the ore, two methods are used for the conversion into oxide. First method is a calcination. Important सारे point है, इनको याद करना है अच्छे से। Calcination. This method is commonly used to convert hydrated oxides or hydroxide and carbonates into respective oxides. It involves heating of the ore below its fusion temperature in absence of air. This step is generally performed in reverberatory furnace. Now see again, it involves heating of the ore below its fusion temperature and performed in
reverberatory furnace. The concentrated ore is put on the heart of the furnace and heated by flames deflected from the roof. During calcination, the following changes may occur. रिवर्बरेटरी फर्नेस का स्ट्रक्चर इससे पहले के चैप्टर में दिखाया था, उसमें देखा था तुमने कि हार्ट कहाँ है, तो कंसंट्रेटेड ओर को कहाँ रखते हैं, हार्ट में, और हीट करते हैं, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। और कौन कौन से चेंज होते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस में, वो उसके रिएक्शन यहाँ है। मॉइस्चर इज ड्राइवन आउट, वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रेटेड ऑक्साइड और हाइड्रोसाइड, ऑर्गेनिक मैटर इज एक्सपेल्ड। तो जब इतना जबरदस्त हीट किया जाता है तो ये सारी चीजें, मॉइस्चर निकल जाती है, वाटर बाहर हो जाता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड या हाइड्राइड्स निकल जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी एक्सपेल हो जाता है। तो जैसे ये बॉक्साइड है, इसको हम हीट करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिना, और वाटर इधर से अलग हो गया। लिमोनाइट आयरन का ओर है, इसको हम हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्साइड बन रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल और मॉइस्चर अलग हो रहा है। और रिवर्बरेटरी फर्नेस जो कि तुम लोगों ने देखा था, अभी हमने पिछले क्लास में स्ट्रक्चर दिखाया था, इस तरह से होता है। यहाँ पे ओर को रख करके, कंसंट्रेट ओर को रख करके हीट किया जाता है। यहाँ से, यहाँ देखो ये फ्लेम्स हैं, उससे जो हॉट गैसेस आती हैं वो इस यहाँ पे रिएक्शन होता है, और मेटल का जो ओर में मेटल प्रेजेंट होती है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। दिस इज द रिवर्बरेटरी फर्नेस। Second है carbonate lose carbon dioxide and are converted into corresponding oxide. अगर और जो है कार्बोनेट है तब हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। इसी तरह डोलोमाइट हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। मेलेकाइट है तो हीट करने पे क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला और H2O और CO2 अलग हो गया। जिंक कार्बोनेट होगा तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इससे अलग हो जाएगी। तो सारे प्रोसेस में देख रहे हो कि जो मेटल है वो हमको ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिल जा रही है। अब दूसरा प्रोसेस ऑक्सीडेशन में है रोस्टिंग। इट इज ए प्रोसेस, थर्ड पॉइंट और था, द मटेरियल बिकम्स पोरस विच कैन बी इजिली रिड्यूस्ड इन द सब्सिक्वेंट स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन पहले, उसके बाद रोस्टिंग। इट इज ए प्रोसेस इन विच द ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। उसमें क्या था, इन एब्सेंस ऑफ एयर था, और ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन द टेम्परेचर इज केप्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर रखा जाएगा, नहीं तो ओर भी गल जाएगी और इम्प्योरिटी के साथ फिर से मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर को बिलो रखा जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर से। द सल्फाइड ओर्स आर जनरली सब्जेक्टेड टू रोस्टिंग। द रोस्टिंग इज जनरली डन इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस और स्मॉल ब्लास्ट फर्नेस का भी यूज करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ रोस्टिंग द फॉलोइंग चेंजेस occurs. Moisture is driven out and organic matter is burned. And third point, the non-metallic impurities such as sulfur, phosphorus, arsenic are converted into respective volatile oxide which get removed. तो सल्फर अगर है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना के बाहर हो जाएगी। फास्फोरस है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा और गैस बनेगी, ये तो बाहर हो जाएगी। इसी तरह आर्सेनिक प्रेजेंट है अगर ओर में तो वो आर्सेनिक ऑक्साइड बना करके ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाएगी। नाउ सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू मेटालिक ऑक्साइड। अभी सल्फाइड ओर क्या होगा, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाएगा तो इम्प्योरिटीज तो देखा इस तरह से गैस बना के बाहर हो जाएंगी। उसके बाद अब ये सल्फाइड ओर है, उसमें जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसमें जो मेटल प्रेजेंट है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना मेन पॉइंट होता है। पीबीएस है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लेड ऑक्साइड बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ जो सल्फर थी इसमें
वो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में बाहर हो जाएगी। उसी तरह क्यूप्रस सल्फाइड है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी। तो इस तरह से कैल्सिनेशन और तुम्हारे रोस्टिंग दोनों प्रोसेस में जो मेटल थी वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। The sulfur dioxide thus evolved is utilized for the manufacture of sulfuric acid. तो ये भी देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल रही है इसको हम, तो जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं ये सब इन सब कामों के, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ हम कहाँ कर लेते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। In the extraction of copper, the ore is copper pyrite, that is CuFeS, which consists of FeS also. The ore is mixed with silica before roasting. During heating, initially a mixture of Cu2S and cuprous sulfide and ferrous sulfide is formed. तो जब ये कॉपर पायराइट ओर होगा तो ये Cu2S और 2FeS एंड S इसमें है, और इसका ये S जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। Now most of the FeS is converted into FeO which combined with silica to form iron silicate, क्योंकि हमको इस ओर से मोस्टली कॉपर लेना होता है, तो यहाँ पे FeS जो है ये FeO में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो सिलिका प्रेजेंट होता है ओर में, उससे ये रिएक्शन करके आयरन सिलिकेट बना लेता है, जो कि एक स्लैग है यानी इम्प्योरिटीज है और अलग हो जाता है। कॉपर इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैट which contains Cu2S and a small amount of FeS. The material becomes porous which can be made easily workable in the subsequent step. ये सारा प्रोसेस इस फर्नेस में होता है जिसका कि नाम है ब्लास्ट फर्नेस। तो इसके बारे में भी अभी पिछले क्लास में टोटल तुम लोगों को बताया था। तो यहाँ देखो ये सबसे नीचे का पोर्शन, इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है नीचे, और ऊपर क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो धीरे धीरे यहाँ से ऊपर से जो मेटल्स हैं ये इसमें डाली जाती हैं, और इधर से जब नीचे से चूँकि गर्म हो रहा है, हॉट गैसेस अंदर पहुँचाई जा रही हैं। पूरा हम इसको छोटा करें तो पूरी फर्नेस दिखाई देगी, और करेंगे और नहीं होगा। अच्छा, तो अब यहाँ देखो ये नीचे क्या है तुम्हारा मोल्टेन आयरन, अभी पिछले क्लास में बता चुके हैं। मोल्टेन आयरन का इसमें प्रोसेस दिखाया है। तो जो भी मेटल होगी, अगर कॉपर का कर रहे हैं तो कॉपर, और मोस्टली आयरन का किया जाता है। तो मोल्टेन आयरन यहाँ है क्योंकि हम टेम्परेचर लगातार ऊपर से बढ़ाते जाते हैं, पहले और को ऊपर से डालते हैं यहाँ पे, और यहाँ गैसेस पास होती हैं, कम टेम्परेचर होता है, धीरे धीरे Fe2O3 Fe3O प्लस या कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है FeO में। फिर और टेम्परेचर आगे ज़्यादा हो जाता है तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे FeOC कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके Fe यहाँ पे अलग हो जाता है। फिर आगे का टेम्परेचर और ज़्यादा होता है, तो जब ये आयरन जो भी मेटल है वो मेल्ट करके यहाँ आ जाती है, और इसमें नीचे का पोर्शन जो होता है उसमें मेटल आ जाती है प्योर, और स्लैग जो है ये ऊपर की तरफ होती है। तो ऊपर से स्लैग निकाल लिया जाता है बाहर, और नीचे से इधर जो प्योर मेटल होती है वो फर्नेस से बाहर निकाल ली जाती है। तो ये फर्नेस कई बार हम दिखाएंगे, आगे भी दिखाएंगे। तो इसका डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका डायग्राम तुम लोग बनाना, और पूरी तरीके से कहाँ क्या है, टेम्परेचर कितना है, किस तरीके से पूरे लेवलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फर्नेस है और ज़रूर आती है। तो आज का तुम लोगों का मेटलर्जी के जो स्टेप थे वो पूरे हुए। उसके बाद हम आगे मेटलर्जी मेटल्स की बताएंगे, और जो इसमें जो प्रोसेस अभी और बाकी हैं, प्यूरिफिकेशन, रिफाइनिंग, ये सारी चीज़ें पहले उसको बताएंगे। उसके बाद 1 बाय 1 3-4 मेटल की मेटलर्जी है
उसको भी बताएंगे।